Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the magnetic field due to any current carrying circular loop. So this is a circular loop whose radius is r, and in this loop current is flowing I, okay, whose center is O. So let me consider a point P on the x-axis at a distance x, and this is a vector dl like this, and at any point here this, okay, and we will calculate here the magnetic field due to this. Let this length is small r, and according to this triangle, this is x and this is r and this is small r, and this is angle theta between the displacement vector and the r vector. Okay, so its value is r is equals to capital R square plus x square under root. Okay, so here we will calculate the resultant magnetic field. So magnetic field is perpendicular at any point, so this is the dB, and its this component is horizontal dbx, and this is dby, okay, and this is known as db cos theta and this is db sin theta. तो देखिएगा, इसका हमने अभी क्या किया है, सेमी सर्कुलर लूप लिया है, और अगर नीचे वाला भी हाफ पोर्शन ले लेंगे तो इसका ये पोर्शन वर्टिकल में dB sin थीटा और आ जाएगा इसकी वजह से, और ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. सो वर्टिकल कंपोनेंट इसके कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो जाएंगे. जो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो लेट मी कंसीडर दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप whose radius is r and current I is flowing in it. Let me consider a particular displacement vector of its circumcircle dl, and due to this let me consider a point P at a distance small x from the center of this loop whose length from this displacement vector is r. So angle between this displacement vector dl like this and this r is theta. Okay, so according to this its horizontal component is db cos theta and vertical is db sin theta, where due to the whole circular this circular ring vertical component will be neglected to each other, and only the horizontal component of this magnetic field provide the magnetic field. So due to this db net is equals to mu naught upon 4 pi I dl upon r square. Okay, and it's 0 to 2 pi r. कंप्लीट इस रिंग के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. ओके, सो इट्स वैल्यू इज db cos theta. So this is equals to this, where the value of cos theta is equals to base upon hypotenuse, and that is equals to r upon r square plus x square power 1/2. देखिएगा यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो हमने पहले हाफ सर्कुलर पार्ट की वजह से यहाँ पर किया हॉरिजॉन्टल dB cos एंड वर्टिकल dB sin. ऐसे ही हमने लोअर हाफ की वजह से करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टल तो इसी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन वर्टिकल ये आ जाएगा. तो dB sin थीटा ये वर्टिकल और dB sin थीटा अपने इस वर्टिकल से नेग्लेक्ट हो जाएगा, एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए हमने dB नेट के लिखा है dB cos थीटा. ओके, सो dB की वैल्यू ये है और cos थीटा की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से सॉल्व कर ली. ओके, सो नाउ dB नेट 1 का dB नेट B नेट आ जाएगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, और r की वैल्यू ये है तो ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, इतना आता है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो टोटल पावर हो जाएगा 3/2, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा dl फ्रॉम 0 to 2 पाई r, तो 1 का dl l होगा, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 l and limit from 0 to 2 pi r. This is equals to b net. Okay, and now it is equals to mu naught I upon 4 pi r square plus x square power 3/2 into 2 pi r minus 0, तो इतना रहेगा। तो b net की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, 2 r, और ये भी r है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये r छूट चुका, ये है r और एक ये r, तो r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी बी नेट की। क्लियर। अब अगर हमें इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो सेंटर का मतलब ये है कि ये लूप था और यहाँ पर हमें O पॉइंट पर फाइंड करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O मीन्स यहाँ का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सो पुट कर दीजिएगा। BO की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी BO इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर क्यूब, सो ये वैल्यू आ जाएगी BO की म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सेंटर पर। और एक और भी आप कर सकते हैं कि अगर जितनी ये रेडियस है उतनी ही इसकी लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इट मीन्स ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड when x equals to r, so P is equals to mu naught I r square upon 2 r square plus r square power 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा BP इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2r स्क्वायर पावर 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पावर 3/2 इंटू आर क्यूब। सो BP आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू आर क्यूब, 2 पावर 3/2 इक्वल टू अंडर√2 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 अंडर√2 r। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर एट सम लेंथ x, and whenever its length x is equal to its radius. Okay, thank you.